وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا ہے بلکہ دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم کو کچھ کام کرنے کے واسطے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہم کو ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنی ساری مخلوقات ہیں، کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق بہت سارے موجود ہیں دنیا میں۔ کچھ ایسے مخلوقات ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سمندر کے اندر، پانی کے اندر رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، مذہب اسلام ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے۔ جیسے غیر مسلموں کے پاس ایک عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ آدمی مرے گا پھر دوبارہ اٹھے گا، پھر مرے گا پھر دوبارہ جنم لے گا، جس کو بولتے ہیں نا پنرجنم۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر پنرجنم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آیا، مر کے چلا گیا، ختم۔ یہ کب اٹھے گا؟ قیامت جب قائم ہوگی، یہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، محشر کے میدان میں جائیں گے، اور وہاں انسانوں کا اور کل مخلوقات کا حساب و کتاب ہوگا۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں
کیوں پیدا کیا؟ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم اس دنیا کے اندر آئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 5 میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو جن بولتے ہیں اور انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے واسطے۔ اب عبادت کس کی کرنا ہے اور عبادت کیوں کرنا ہے؟ عبادت کیسے کرنا ہے؟ عبادت کب تک کرنا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات آج کے درس میں ہم جاننے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے درس میں ہم یہ سیکھنے کی، جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ توحید، کیا پڑھتے ہیں کلمہ توحید میں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، کوئی جھکنے کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی۔ یعنی ہماری جتنی عبادت ہے کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے میسنجر ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھے۔ کلمہ توحید اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے دو ٹکڑے کریں گے، اصل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو کہا جاتا ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے اس بات کو ماننا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا حاکم اور ہمارا مدبر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہمارا خالق مانے ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہمارا حاکم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ ہے توحید کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی توحید کا یہ ہے اپنی تمام تر عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنے کو توحید کہا جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے وقت میں 3 کام کرتے ہیں۔ پہلی چیز کھڑے ہوتے ہیں، پہلی چیز کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کیا کرتے ہیں؟ رکعت باندھتے ہیں۔ دوسری چیز رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں نا تھوڑا سا، اس کو بولتے ہیں رکوع۔ تیسری چیز سجدے میں جاتے ہیں۔ نماز میں یہ 3 طرح کی عبادت ہم کرتے ہیں۔
पहली चीज क़ियाम, दूसरी चीज रुकू और तीसरी चीज सजदा। ये किसके वास्ते करते हैं हम लोग? अरे बोलो जी, अल्लाह के वास्ते करते हैं। किसके वास्ते करते हैं? अल्लाह के वास्ते। कितनी चीजें हो गई? क़याम यानी खड़े होना, रुकू यानी झुकना, और तीसरा सजदा करना। ये तीनों चीजें हम नमाज में किसके वास्ते करते हैं? अल्लाह के वास्ते करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम नमाज में, नमाज को इबादत भी बोलते हैं, जब हम नमाज में, इबादत में क़याम करते हैं, खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं, आजिजी और इनकिसारी के साथ अपनी पीशानी और नाक को जमीन पर रगड़ते हैं, तो जब ये नमाज अल्लाह के लिए है तो ऐसा काम अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करना हराम है, शिर्क है। बात समझ में आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पर हम नमाज में खड़े होते हैं, किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते। जब हम अल्लाह के वास्ते नमाज में खड़े हो गए तो ये इबादत का एक तरीका है। अगर अदब से खड़े होना है तो किसके सामने खड़े होना है? अल्लाह के वास्ते। ठीक है, अब हम लोग यहां बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, दर्स सुन रहे हैं। एक बड़ा आदमी आ गया तो क्या उसके लिए खड़े हो सकते हैं? बोलो, खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। क्यों? ये खड़े होना क्या है? इबादत है। और इबादत बंदे के लिए नहीं कर सकते, किसी और इंसान के वास्ते नहीं कर सकते। इबादत सिर्फ किसके वास्ते करना है? अल्लाह के वास्ते करना है। कभी कभी स्कूल में टीचर आने के बाद सब बच्चे खड़े होते हैं, वो भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि खड़े होना अल्लाह के वास्ते है। अगर हम लोग उस्ताद के वास्ते खड़े हो गए तो ऐसा करना हराम है। उसकी दलील क्या है? सही मुस्लिम की रिवायत, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आने लगे। कौन आने लगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में जितने बड़े इंसान हैं, जितनी बड़ी शख्सियतें हैं, उन सब से बड़ी शख्सियत अगर कोई है तो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे और सहाबाए कराम जब देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो ये सहाबाए कराम ताजीम में, इज्जत के तौर पर, एहतराम में खड़े हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बैठने का इशारा किए, बोलने लगे बैठो, खड़े नहीं होना, बैठो। फिर उसके बाद एक बात बोलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तकूमू कमा तकूमुल आजिम। जिस तरीके से आजमी लोग खड़े होते हैं, तुम उस तरीके से मेरे वास्ते खड़े नहीं होना। तो इसका मतलब यह है, जब नबी के वास्ते ताजीम के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो एक बड़ा आदमी आ गया तो हम उसके वास्ते खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। क्यों? खड़े होना क्या है? इबादत है। खड़े होना क्या है? इबादत है। हम ये इबादत कहां करते हैं? नमाज में करते हैं, खड़े होते हैं। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। अल्लाह तबारक व तआला के साथ, अदब के साथ खड़े हो जाओ। बात समझ में आ रही है? आप मेरी तरफ देखेंगे, उधर इधर नहीं। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के लिए अदब से खड़े हो जाओ। चूंकि हम नमाज में अदब से अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, इस वास्ते आदमी कितना भी बड़ा हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, किसी और के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि खड़े होना इबादत है और हम ये इबादत अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं कर सकते। खड़े होना इबादत है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए खड़े नहीं हो सकते। नमाज में हम दूसरी चीज क्या करते हैं? रुकू करते हैं। नमाज में हम दूसरी चीज क्या करते हैं? रुकू करते हैं। रुकू ये मतलब यह है कि वो खड़े हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं।
یہ جو جھکنا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو. چونکہ رکوع کرنا عبادت ہے، جھکنا عبادت ہے، اس واسطے یہ جھکنا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. آج بھی حیدرآباد میں ایک تہذیب ہے، حیدرآباد دکن میں جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو جھک کر کے سلام کرتے ہیں. یہاں بھی کرتے ہیں کیا؟ یہاں وہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتنے دور سے السلام علیکم، ادب، السلام علیکم، جھک جاتے ہیں. تو یہ جو جھکنا ہے کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. ہم رکوع کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی جھکتے ہیں اللہ کے لیے. یہ جھکنا کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے. تو اس لیے ہم بندوں کے سامنے نہیں جھک سکتے. ٹھیک ہے؟ تو ہم کھڑے ہوئے کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. تو رکوع کیے کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. تو کھڑے ہونا دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، جھکنا دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. اب تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے جی نماز میں؟ سجدہ کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدے کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر قیام کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کے لیے، رکوع کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں تو اللہ کے لیے. اب سجدہ بھی اگر کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کا اتنا بڑا مقام ہے، میاں بیوی رہتے ہیں، جورو مرد رہتے ہیں، مرد کا اتنا بڑا مقام ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے واسطے سجدہ کرے. چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو یہ حکم نہیں دیے کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے. اب اصل بات پہ آتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کتنی چیزیں کر رہے تھے؟ 3 چیزیں. دوبارہ بولو. نمبر 1 کھڑے ہونا، نمبر 2 رکوع کرنا، نمبر 3 سجدہ کرنا. جب یہ تینوں چیزیں ہم نماز میں کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہی عبادت ہم کسی اور کے لیے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ مردہ ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے سورج چاند ستارے ہوں، چاہے وہ درخت ہو یا کل مخلوقات ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے. قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا حرام ہے، یا دوسرے معنی میں یہ ہے کہ شرک ہے. خالی لا الہ الا اللہ زبان سے بول دیے اور اس کا معنی مطلب نہیں سمجھے تو کیا بھی فائدہ نہیں. آج پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. کلمہ اگر آتا ہے تو اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اور اگر معنی معلوم ہے تو کلمے کا مفہوم معلوم نہیں ہے. کیوں ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے سے نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبی بن کر آئے تو مکے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے. ٹھیک ہے؟
खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, उसके सामने वो लोग उसकी पूजा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मक्के वालों को दावत देते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, कामयाब हो जाओगे, अरब और अजम के मालिक बन जाओगे। लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। तो लोग बोलने लगे ये हमारे बुत इबादत के लायक नहीं। बोले कुछ लायक नहीं है। बोले क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनके आंखें हैं, देखते हैं क्या? इनके कान हैं, सुनते हैं क्या? इनके चेहरे से मालूम होता है कि ये इंसानी शक्ल है। इनके मुंह में अगर जबान है तो बोलते हैं क्या? कोई चीज देंगे तो पकड़ते हैं क्या? और अगर इनको जरूरत पड़ी आगे आने की, क्या ये आते हैं क्या? नहीं आते। फिर तुम इसकी इबादत क्यों कर रहे हो? तो सबसे पहले मक्के वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की। तो इसका मतलब यह है कि जब आप कलमे की दावत देंगे तो हमारे अपने घर वाले सबसे पहले मुखालिफ बनते हैं। तो इसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपना काम आगे बढ़ाते रहना है और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ रहती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जितने नबी इस दुनिया में आए, सब नबी की दावत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब यह है कि कलमा पहले एक था, रिसालत बाद में थी। तो सबसे पहले कलमे को समझना है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिर रसूलिन, हमने आपसे पहले जितने रसूलों को भेजा है, हमने उनकी तरफ वही की। क्या वही की? ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। कोई इबादत के लायक नहीं मगर मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत करो। तो इसका मतलब यह है, रिसालत में नाम अलग होता था, लेकिन उससे पहले कलमे में सिर्फ एक ही कलमा होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना है। और आपको यह बात भी मालूम है कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर है। फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज है तौहीद, दूसरी चीज नमाज, तीसरी चीज रोजा, चौथी चीज ज़कात, 5वीं चीज हज। ये इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं। यानी एक आदमी अगर इस्लाम में दाखिल होता है तो ये 5 फर्ज को मानना जरूरी है। ये बुनियादी चीजें हैं। मैं दोबारा पेश कर देता हूं। पहली चीज है तौहीद, दूसरी चीज है नमाज, तीसरी चीज है रोजा, चौथी चीज है ज़कात और 5वीं चीज है हज। आज मुसलमानों के अंदर 4 चीजों की दावत सारे मुसलमान, सारी जमातें देते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। लेकिन कलमे की दावत कौन भी नहीं देता। क्यों? लोग क्या समझते हैं? कलमे की दावत दिए तो झगड़ा होता है। क्या बोलते हैं? कलमे की दावत दिए तो लोग झगड़ने के वास्ते आते हैं, मारने पीटने के वास्ते आते हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मक्के वालों को सबसे पहले नमाज पढ़ने के वास्ते बोले? नहीं बोले। रोजा रखने के वास्ते बोले? नहीं। हज करने के वास्ते बोले? नहीं। ज़कात देने को बोले? नहीं। सबसे पहले क्या दावत दिए?
کلمے کی دعوت دی ہے. لا الہ الا اللہ, یہی کلمہ توحید ہے. اگر اس کی دعوت سے ہم اپنا کام شروع کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر ہماری دعوت میں توحید کی دعوت نہیں ہے تو ہم اپنے دعوتی کام میں فیل ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن لوگ چھیڑتے ہیں, تم لوگ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں, رفع الیدین کر رہے ہیں, آمین زور سے بول رہے ہیں. یہ مسئلے نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمے کا ہے. کلمہ اگر مضبوط ہے تو سب مضبوط ہے, کلمہ ہی مضبوط نہیں ہے تو سب بیکار ہے. صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جاء اعرابیا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. ایک گاؤں والا, ایک کھیڑے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ویسے لوگوں کو اردو میں بولتے ہیں بدو, عربی میں بھی بدو بولتے ہیں, اردو میں بھی بدو استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ کھیڑے والا رہنے بولتے نہیں, گاؤں کھیڑے والا. ٹھیک ہے. تو ایک گاؤں والا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر کے پوچھنے لگا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسا کام بتاؤ میں کرنے کے بعد سیدھا جنت میں جانا. میں وہ کام کرنے کے بعد کہاں جانا؟ سیدھا جنت میں. آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کہاں جانا چاہتے ہیں جی؟ جہنم میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا. جنت میں نعمتیں, جہنم میں کیا ہے؟ عذاب ہے, انگار ہے, آگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو جنتیوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تو آدمی آ کر کے پوچھنے لگا, ایسا کام بتاؤ میں کرنا اور سیدھے جنت میں جانا. تو آپ بھی یہ کام کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیے؟ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کام نہیں بولتے. کتنے کام بولتے ہیں؟ 4 کام بولتے ہیں. وہ 4 کام کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. پہلا کام, اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے تجھے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کی ایسی عبادت کر کہ اللہ کی ذات میں شرک مت کر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر. کس کی عبادت کر؟ اللہ کی عبادت کر. ولا تشرک بہ شیئا, رتی برابر بھی اللہ کی ذات میں شرک مت کر. اب ہم لوگ عبادت کے معاملے میں نماز کے بارے میں ابھی 3 چیزیں سیکھے تھے. یہاں وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلی چیز کھڑے ہونا, دوسری چیز رکوع کرنا, تیسری چیز سجدہ کرنا. یہ عبادت ہے نا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں, جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں, سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, توکل اللہ پر کرتے ہیں, تمام نذر و نیاز اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ صرف اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کام کسی بندے کے لیے, کسی مخلوق کے لیے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت والی ایک حدیث بھی ہے, دعا والی بھی ایک حدیث ہے. لعنت والی حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. حدیث کو پورے غور سے سنیں, اس میں بہت اچھی لاجک ہے سمجھنے کے لیے. لعن اللہ الیہود والنصارى, لعنت ہو یہودیوں پر, لعنت ہو نصرانیوں پر. نصرانی بولتے ہیں کرسچنوں پر. لعنت ہو یہودیوں پر, لعنت ہو نصرانیوں پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. اور یہ بہت بری بد دعا ہے, یہ سمجھو. لعنت کسی کے اوپر بھیجنا نہیں چاہیے,
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत क्यों भेज रहे हैं कि उन्होंने नबियों की कब्रों को क्या बना लिया था? सजदा करने की जगह बना लिया था। अब जरा सोचो, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत है क्योंकि उन्होंने नबियों की कब्रों को सजदे की जगह बना लिया था। अगर कोई मुसलमान किसी वली की कब्र को सजदे की जगह बना लेता है तो क्या उसके ऊपर अल्लाह की रहमत होगी या अल्लाह की लानत होगी? अल्लाह की लानत होगी। जो सजदा अल्लाह के लिए किया जा रहा है वो किसी नबी के लिए नहीं कर सकते। जो सजदा अल्लाह के लिए कर रहे हैं वो नबी के लिए भी नहीं कर सकते। जब नबी के लिए नहीं कर सकते वो सजदा, तो वली के लिए सजदा कर सकते हैं। किसी झाड़ के सामने, नीम के झाड़ के सामने, वो पीपल के झाड़ के सामने सजदा कर सकते हैं? झंडे कट्टे के सामने सजदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। जब जिंदे के लिए, मुर्दे के लिए सजदा नहीं कर सकते तो झाड़ के सामने, हम दरख्त के सामने कैसे सजदा कर सकते हैं? तो यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गांव वाले से क्या बोला? पहली चीज, अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की जात में किसी को शरीक मत कर। अब दूसरी चीज, वह तुकीमुस्सलातुल मक्तूबा, फर्ज नमाजों की पाबंदी कर। किसकी पाबंदी कर? फर्ज नमाजें। फर्ज नमाजें कितने हैं? 18-20 हैं। कितने हैं? तुम्हारे यहां भी 5 है? नहीं, हमारे यहां 5 है, यहां भी 5 है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। दुनिया के कौन से भी कोने में गए तो फर्ज नमाज कितनी है? फर्ज नमाज कितनी है? 5 है। आप लोग 5 वक्त की नमाज में कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? फर्ज नमाज 5 है ना? आप लोग कितनी मर्तबा पढ़ते हैं? 2 पढ़ को 3 छोड़ दिए तो फायदा नहीं, 3 पढ़ को 2 छोड़ दिए तो फायदा नहीं। कितने पढ़ना? 5 के 5 पूरे पढ़ना। 5 वक्त की नमाज पढ़ना है और साथ में सुन्नत भी पढ़ना है। सुन्नत कितनी रकात है? सुन्नत कितनी रकात है? 12 रकात है। फर्ज कितनी रकात है? 17 रकात है। 5 वक्त की फर्ज नमाजों में 17 रकात है और सुन्नत 12 रकात है। और अगर 12 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, कितनी बड़ी फजीलत है मालूम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी 12 रकात सुन्नत की पाबंदी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में जन्नत में एक महल तामीर करता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। देखो, यहाँ छोटा घर भी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अल्लाह हमारे वास्ते 12 रकात पढ़ेंगे तो क्या बना रहा? जन्नत में महल बना रहा, घर नहीं, महल बना रहा है हमारे वास्ते। अगर रोजाना हम लोग 12-12 रकात पढ़ रहे हैं तो मरते दम तक कितने महल हो गए जी? कई हजार महलों के हम लोग मालिक हो गए। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। हमारे यहां पढ़ने वाले 4 नमाजें पढ़ लेते हैं। सबसे मुश्किल नमाज कौन सी है बोलो? हाँ, यहां आंखों अटकते हैं हम लोग। क्यों बोले तो एसी लगे रहती, फैन चलते रहता, अजान होने के वक्त में चादर ओढ़ करके सो जाते हैं हम लोग। नमाजों की पाबंदी करना, सबसे पहली चीज अल्लाह की इबादत करना, उसकी जात में शरीक नहीं ठहराना। और दूसरी चीज नमाजों की पाबंदी करना। और नमाजें कितने हैं? 5 नमाजें हैं। दिन और रात में 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करना। और तीसरी चीज है वह तो अद्दी ज़कातल मफरूदा, अपने माल की ज़कात देना। अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको माल दिया है, कारोबार कर रहे हैं आप, तिजारत वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी आप अपने अपने अंदाज से जो है रोजी कमा रहे हैं, अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसा है और उस पर 1 साल गुजरता है तो उसमें से क्या निकालेंगे? ज़कात निकालेंगे। वो एक निसाब है, उसका एक अलग जो है कैलकुलेशन है। अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर आपको बताएंगे।
चौथी चीज है वो तसूमा रमजान, रमजान के रोजे रखना, रमजान के रोजे रखना। वो देहाती आकर के क्या सवाल किया था, मुझे ऐसा काम बताओ मैं करने के बाद सीधा कहां जाना, जन्नत में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने काम बताए, 4 काम। पहला काम क्या बताए, अल्लाह की इबादत ऐसी कर अल्लाह के जात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। दूसरी चीज यह है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरी चीज है अपने माल की ज़कात देना। और चौथी चीज है रमजान के रोजे रखना, रमजान के रोजे रखना। इस्लाम के फराइज कितने हैं, बुनियादी चीजें कितने हैं, 5 हैं। इसमें एक चीज नहीं है, कौन सी नहीं है, हज नहीं है। तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खाली 4 बातें बोले सो है, 5वीं बात नहीं है। उलमाए कराम लिखते हैं अभी हज फर्ज नहीं हुआ था, 4 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बता दी है। बात समझ में आई, बाद में कंफ्यूज नहीं होना, मौलाना खाली 4 बताए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बताए बोल करके ये 5वीं चीज कहां गायब हो गई। शैतान दिमाग में डालता है, इस वास्ते पहले क्लियर कर लेना हो, ठीक है। अच्छा, अब उन्हें क्या बोलता मालूम, आगे 4 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने बयान किए, तो आगे उन्हें क्या बोलता, क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा, उस रब की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जितना आप बताए हैं उससे मैं ज्यादा नहीं करूंगा, जितना बोले हैं उतना ही करूंगा। एक हदीस आती है ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर कमी बेशी नहीं करूंगा, जितना आप बोले उतना ही करूंगा। अब यहां देखो वो आदमी क्या बोलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना आप बोले हैं मैं उतना ही करूंगा, उसके अंदर कमी और ज्यादती नहीं करूंगा, कम भी नहीं करूंगा ज्यादा भी नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है दीन के किसी भी मामले के अंदर कम भी नहीं करना ज्यादा भी नहीं करना। अगर आप कम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह हुक्म दिया वो आपको पसंद नहीं है, अगर आप कम कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है अल्लाह को भी मालूम नहीं, रसूल को भी मालूम नहीं, तुम ना सब मालूम हो गया, इस वास्ते ज्यादा कर रहे हैं। सही है या गलत है, गलत है। अब देखो उन्हें क्या बोल करके जा रहा, अल्लाह के नबी जो 4 चीजें आप मेरे सामने रखे, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, उसकी कसम खा करके कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसके अंदर कमी और ज्यादती नहीं करूंगा। फलम्मा वल्ला, जब वो पलट करके जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला बोलते हैं, क्या प्यारा जुमला है मालूम हो, सोने के पानी से लिखने के काबिल है वो, आबे ज़र से लिखने के काबिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा, अगर किसी जन्नती को देखना चाहते तो इसको देख लो क्योंकि यह जन्नती है। अल्लाहु अकबर। सवाल किया, जवाब लिया, वादा किया, पलट को जाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको किसकी खुशखबरी दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। अगर वही सवाल का जवाब हम लेकर के अमल करेंगे और हम सारी जिंदगी उस पर अमल करते रहेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह ताला कहां जाएंगे, कहां जाना है आप लोगों को, पक्का एकदम। तो इंशाअल्लाह ताला अब नमाजों की पाबंदी शुरू हो जाएगी, रोजे भी रखेंगे, ज़कात भी देंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, तौहीद पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, एक अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो मालूम क्या हुआ कि एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो तौहीद पर अपनी जिंदगी गुजारे, तौहीद को समझे। यहां तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्ना, अगर कोई शख्स सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो जन्नत में जाएगा। कौन से दिल से बोलना है, सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, तब जाकर के वो जन्नत में दाखिल होगा। अब आइए तौहीद की किस्में मैं आपके सामने बयान करता हूं। समझने के लिए उलमा इकराम इसको 3 हिस्सों में तकसीम किए हैं।
तौहीद की 3 किस्में हैं। एक है तौहीद रुबूबियत, दूसरे है तौहीद उलूहियत, और तीसरे है तौहीद अस्मा व सिफात। मैं बिल्कुल आसान बना के पेश करने की कोशिश करता हूं, समझ में आना इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दिमाग में वो बात बैठना। तौहीद रुबूबियत का मतलब यह है कि सारी कायनात को चलाने वाला रब कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, सारी कायनात का रब है। असल में रब कहते हैं पालने वाला, परवरिश करने वाला। और आपको मालूम होना चाहिए कि मक्के के लोग अल्लाह को मानते थे कि नहीं मानते थे? क्या ख्याल है? अल्लाह को मानते थे। हां, मक्के के लोग अल्लाह को मानते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का, अब्बा का नाम क्या है? अब्दुल्ला। मालूम ना आप लोगों को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला के माने अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह को मानते थे ना वो लोग। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान किया है, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। जब मक्के वालों से पूछा जाता जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, तो वो लोग क्या जवाब देते थे? अल्लाह ने पैदा किया। ये जमीन को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। ये आसमानों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। ये सूरज को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। ये चांद और सितारों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। दुनिया के अंदर जितनी मखलूकात हैं, इन तमाम को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। जब वो पैदा किया है तो पालना किसका काम है? उसी अल्लाह का काम है। बच्चे माशाअल्लाह अच्छा जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अगर इन बच्चों की सही तरबियत अभी से हो जाए ना तौहीद पर, माशाअल्लाह ये दीन के दाई बनेंगे। और बनाइए अपने बच्चों को, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, दीन के दाई बनाइए। अगर आपको अल्लाह ताला ने लड़के दिए हैं, लड़कियां दी हैं, तो इन बच्चों को दीन के दाई बनाइए, ताकि ये लोग घूम फिर करके दीन की दावत कर सकें। कहां मैं कर्नाटक शहर हुबली से 700 किलोमीटर आपकी खिदमत में आया हूं, किस काम के लिए? दीन की दावत के लिए। आपके बच्चे भी अगर आपके जो है दीन के दाई बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में घूमेंगे। ये दीन की बरकत है, हम लोग यहां तक पहुंचे आपके पास। ठीक है, तो मक्के के लोग अल्लाह को मानते थे, लेकिन कुरान करीम ने उनको मुशरिक कहा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात में अपने बुतों को अल्लाह की जात में वसीला बनाते थे। कैसे? हमें अल्लाह से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इस वास्ते क्या करेंगे? एक बकरा काट को, खून लेक जाको बुत के ऊपर चढ़ाएंगे या बकरा उसके सामने रखेंगे। ये पहले राजी होंगे और ये किसको राजी कराएंगे? अल्लाह को राजी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरे से डायरेक्ट मांगो, उधर इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। और यही गलत अकीदा किसके अंदर है? आज मुसलमानों के अंदर है। 1400 साल पहले मक्के के मुशरिकीन के अंदर यह अकीदा था कि वो बगैर वसीले के दुआ नहीं मांगते थे, बुतों को राजी करते थे। आज मुसलमान भी वही काम कर रहे हैं, ले जाकर के चादरें चढ़ा रहे हैं, बकरे ज़बा कर रहे हैं, और वहां जाकर के जो है बड़े बड़े देगे चढ़ा करके अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहे हैं और उसे दीन समझ रहे हैं। यह दीन नहीं है, यह इस्लाम नहीं है। इस्लाम इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आया है। अपना ताल्लुक खालिस अल्लाह तबारक व तआला से जोड़। अल्लाह तबारक व तआला रब है, यह तौहीद है, यह सीखना समझना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला रब कैसे है?
एक दो मिसाल जो समझने के वास्ते। अरे बोलो जी, नहीं नको बोले तो खत्म कर देता हूं, समझो, समझते हैं इंशाअल्लाह। छोटी मिसाल, मामूली बोलते हैं ना आप लोग, मामूली मिसाल। एक अंडा है, एक अंडा कितने में मिलता? 7 रुपए में मिलता, ठीक है, यहां भी 7 रुपए है, अरे बाप रे ठीक है चलो 7-8 रुपए हर जगह यही कीमत है उसकी। 7 रुपये का एक अंडा आप खरीदते हैं और वो मुर्गी के पेट के नीचे रखते हैं 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन। जब मुर्गी के पेट के नीचे रखते हैं 20-22 दिन के बाद उस मुर्गी के अंडे में से एक चूजा निकलता, मुर्गी का बच्चा निकलता, चूजा निकलता। अच्छा, ये 20-22 दिन के बाद वो बाहर निकलता, जिंदा रहता कि मुर्दा रहता? जिंदा। कैसे? वो अंदर से फुल पैक रहता, सुई डालने की जगह भी नहीं रहती उसके अंदर, अंदर से पैक रहता। 22 दिन उसको रोजी कौन दिए? 22 दिन वो सांस कहां से लिया? 22 दिन उसकी परवरिश कौन किए? 22 दिन तक उसको टेम्परेचर, गर्मी, सर्दी कौन पहुंचाए? अल्लाह तबारक व तआला पहुंचाया, इसीलिए उसको रब कहा जाता है। हम लोग इस दुनिया में आने से पहले मां के पेट में थे। मां खाती है, हमको रोजी मिलती है, मां सांस लेती है, हमको ऑक्सीजन मिलता है, मां पीती है, हमारा भी पेट भरता है, और फिर उसके बाद हम गलाजत भी करते हैं, सारी चीजें अपने रास्ते से निकल जाती हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला रब उसको कहते हैं जो सारी दुनिया को पाल रहा है, मां के पेट में रहते हुए भी पाल रहा है, अंडे के अंदर भी रहते हुए पाल रहा है। क्या अल्लाह ताला की शान है। और अल्लाह तबारक व तआला कैसे पालता है, रोजी कैसे देता है। रब का मतलब पालने वाला, पालना मतलब रोजी देने वाला। आपको मालूम है समंदर का पानी खारा क्यों है? कोई बता सकते हैं? हमें बचपन में कहानी सुनते थे, क्या सुनते थे? एक बुड्ढी बैठ को है, उसके सामने चक्की है, वो चक्की फिराते जा रही, ऊपर से नमक डाल रहे हैं, इस वास्ते समंदर का पानी क्या है? खारा है। हम लोग बचपन में सुनते थे, बाद में अकल आई, समझ आई, तब मालूम हुआ कि बुड्ढी बुड्ढी कोई भी चक्की घुमाती नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोग जो है कहानी बना के बैठे हैं। पूरी दुनिया में आप देख लें, अगर दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा जमीन है, 3 हिस्से क्या है? पानी है। और पानी में भी कौन सा है? खारा पानी है, समंदर का पानी है। समंदर का पानी पीने नहीं आता, समंदर का पानी नहाने नहीं आता, समंदर का पानी इस्तेमाल करने में भी नहीं आता, क्योंकि वो खारा है। अल्लाह ताला समंदर का पानी खारा क्यों बनाया? इसके बारे में इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, आजादी के बाद एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर है मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुने हैं क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, वो कुरान के मुफस्सिर भी हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखे हैं वो तौहीद पे, कुरान की तफसीर भी लिखे हैं। वो अपनी तफसीर के अंदर लिखे हैं, समंदर का पानी खारा रहने की वजह से लोग उसके आजू बाजू जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर समंदर का पानी मीठा रहता तो समंदर के बाजू इंसान नहीं जा सकता था, कई की वजह से, क्योंकि समंदर का पानी खारा होने की वजह से उसके अंदर बदबू नहीं आती। तालाब के पास आप चले जाओ, पानी मीठा ठहर को रहने से उसके अंदर एक बदबू आती है, एक बू आती है उसके अंदर, सड़ी बदबू आती है उसके अंदर। अल्लाह तबारक व तआला की यह हिकमत है, बंदों को रोजी पहुंचाने के वास्ते उसने समंदर का पानी खारा बना दिया है। लोग समंदर के बाजू रहते हैं, मछली का शिकार करते हैं, खाते हैं। अब देखो रोजी का इंतजाम कैसे है, लोग शिप लेकर के कहां जाते हैं? समंदर में जाते हैं। जो शिप बनाते हैं उनका फायदा, उसके लिए जाल लेके जाते हैं, जाल बनाने वाले उसका फायदा।
और फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल लेके जाते हैं, उनका फायदा। वो जाकर के मछली पकड़ते हैं, लेके आते हैं, लाने के बाद होलसेल में लोग जो है खरीदते हैं, फिर दूसरे पार्टी खरीदते हैं, तीसरे पार्टी खरीदते हैं, चौथे पांचवें खरीदने के बाद हमारे गांव के अंदर मच्छी आती, वांगड़े वांगड़े 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो मछली हमको मिलती है, लेकिन उसकी असल कीमत कितनी रहती है? जब वो समंदर के बाहर आती है 50 रुपए उसकी कीमत है। सब लोग उसके अंदर कमीशन लेते लेते वो 50 से कितने बन जाते हैं? 100 बन जाते हैं। अब कितने लोग समंदर से फायदा उठा रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज ये है, बड़े बड़े जहाज, कश्तियां एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाती हैं, हजारों टन उसके ऊपर जो है सामान रहता है, हजारों टन रहता है। पानी कभी ज्यादा हुआ? नहीं हुआ। पानी कभी कम हुआ समंदर का? नहीं हुआ। बारिश ज्यादा हुई तो पानी ज्यादा नहीं होता, बारिश अगर कम हुई तो पानी कम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा बैलेंस के साथ रखा है। इससे यह साबित होता है कि दुनिया को चलाने वाला कोई है, उसी को रब कहते हैं। बात समझ में आ रही कि ऐसा मुंडे हला रहे? समझ में आ रही? अंडे की मिसाल समझ में आई, समंदर की मिसाल समझ में आई। हाँ, तो ऐसे रब इसको कहते हैं। जब वो पालने वाला है, जब वो रोजी दे रहा है, जब हमारी परवरिश कर रहा है, तो हमें इबादत किसकी करनी चाहिए? उसी अल्लाह ताला की हमको इबादत करना चाहिए। तो मालूम क्या हुआ? ये तौहीद रुबूबियत है। ये तौहीद रुबूबियत तौहीद की पहली किस्म है। तौहीद की दूसरी किस्म है तौहीद उलूहियत। उलूहियत किसको कहते हैं? असल में हम लोग अभी पढ़े ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा से उलूहियत है। इलाह के माने कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं, कोई क़याम के लायक नहीं, कोई रुकू के लायक नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं, कोई कुर्बानी के लायक नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई रोजी देने वाला नहीं, कोई औलाद देने वाला ही नहीं, कोई भला करने वाला नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह तबारक व तआला। वही क़याम के लायक है, वही रुकू के लायक है, वही सजदे के लायक है, वही इबादत के लायक है, वही कुर्बानी के लायक है। और अगर कोई मुसलमान अल्लाह को छोड़ करके किसी और को रुकू सजदे करता है तो ऐसा करना हराम है। बात समझ में आ रही है? तो यह समझने की जरूरत है। तौहीद उलूहियत का मतलब यह है कि हमारी जितनी इबादतें हैं किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल को, एक पैगंबर को भेजा है। यानी जितनी उम्मतें आए हैं, हर उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने एक रसूल को, एक पैगंबर को भेजा है। उनकी दावत क्या थी? अनि अबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करना, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत का इनकार करना। अल्लाह की इबादत करना, यह तो बात हमारी समझ में आ रही है। तागूत का इनकार करना, तागूत किसको बोलते हैं? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तागूत किसे बोलते हैं? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुल्लु मा युअबद मिन दूनिल्लाह फहुव तागूत। अल्लाह के अलावा जिस किसी की भी पूजा परस्तिश होती है, जिस किसी की भी इबादत होती है, वो क्या है? तागूत है। अल्लाह के अलावा किसकी भी इबादत होती है, चाहे करने वाले इबादत नबी की करते हो, करने वाले इबादत वली की करते हो, करने वाले इबादत किसी बाबा की करते हो, किसी पीर की करते हो, किसी वली की करते हो, या किसी जिंदे और मुर्दे की करते हो, किसी दरख्त की करते हो, किसी जानवर शरिंदे परिंदे की करते हो, फरिश्तों की करते हो, चाहे वो जिन्नात की करते हो, अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती है, यह तागूत की इबादत है, और तागूत की इबादत करना हराम है।
फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा। आयतुल कुर्सी जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 250 पर 5 है, उसके बाद की आयत है। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तागूत का इनकार करता है और अल्लाह पर ईमान लाता है, फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, उसने अल्लाह के कड़े को मजबूती से थाम लिया। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोग इबादत किसकी करेंगे? अल्लाह की करेंगे। और इनकार किसका करेंगे? तागूत। और तागूत असल में शैतान है। तागूत असल में कौन है? शैतान है। शैतान ये नहीं चाहता कि हम अल्लाह की इबादत करें, शैतान ये चाहता है कि हम गैरुल्लाह की इबादत करें। शैतान खुद चाहता है कि मेरे सामने सजदा करो, मेरे सामने झुको। और लोग जो शिर्क कर रहे हैं, एक माने में वो शैतान की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? शैतान की पूजा कर रहे हैं। शैतान की पूजा करना अच्छा है या बुरा है? बहुत बुरा है। तो इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो शैतान की पूजा करने से बचे। जिसको हम अपना रब मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो सारी दुनिया में एक है या दो है, या दो से ज्यादा है? 15, 20, 25, 50, 100? आपको मालूम होना चाहिए 1957 में एक सर्वे हुआ था कि इंडिया के अंदर कितने खुदा हैं। 1957 में एक सर्वे हुआ था, इंडिया में कितने खुदा हैं। तो उस वक्त का रिकॉर्ड यह है 3 करोड़ खुदा हैं इंडिया में 1957 में। अब तकरीबन हो गए 70-80 साल, ठीक है ना? अब कितने खुदा होंगे? अब हिसाब ही नहीं कर सकते उसका। हर जगह जो है लोग गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अच्छा, अब खुदा कहां कहां बैठ रहा मालूम? 2 व्हीलर के सामने भी बैठ रहा, 3 व्हीलर के सामने भी बैठ रहा, 4 व्हीलर के सामने भी बैठ रहा, 10 व्हीलर के सामने भी बैठ रहा। और लोग हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हम गैरों की तो बात नहीं करते, मुसलमानों को देख लो, बाबा का फोटो लगा हुआ है। इन्हें क्या हो गया? खुदा हो गया इसका। इन्हें एक्सीडेंट होने नहीं देता, इन्हें बरकत जाने नहीं देता, कस्टमर को उधर इधर भटकने नहीं देता। ये फोटो जो है सारी जिंदगी में बरकत लाता। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला गया काम से, ये बाबा ही सब कुछ कर रहा है। फोटो रख रहे हैं नहीं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बाबा की फोटो के साथ साथ और एक तोगरा रख रहे हैं। दुकानों मकान की खैर व बरकत के लिए अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ, अलिफ लाम रा काफ यासीन अर्रहमान, ये लिख करके समझते हैं। खाली सुबह में उठ को ऐसा देखे तो बस बरकत बरकत। नमाज पढ़ने वाले बेवकूफा, रोजा रखने वाले जाहिला, ज़कात देने वाले निकम्मे, और हज करने वाले 1 नंबर के गए गुजरे। ऐसा है नहीं, लोगों की अकलों पे पर्दे पड़े हुए। सिर्फ कलमा पढ़ लेना ये मुसलमान नहीं है, कलमे को समझना है, ये शहादत गह उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना उतना आसान नहीं है, कलमे को समझना है। कलमे को अगर समझेंगे तो अल्लाह समझ में आएगा, और अल्लाह ताला अगर समझ में आएगा तो इंसान कभी भी ये अपनी पेशानी और नाक किसी के सामने नहीं रगड़ेगा। इसकी बहुत बड़ी कीमत है। ये पेशानी और नाक है ना, ये बहुत बड़ी कीमती चीज है। कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नाक और पेशानी नहीं रगड़ना। अगर रगड़ना है तो किसके सामने? झुकाना है तो किसके सामने? अल्लाह ताला के सामने झुकाना। इसी को तौहीद बोलते हैं। यही तो तौहीद उलूहियत है। और सारी दुनिया के अंदर 2 खुदा नहीं है, कितने हैं? एक ही है। सारी दुनिया का रब कितने हैं? अल्लाह ताला एक ही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लौ काना फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह लफसदता। अल्लाह के अलावा अगर कहीं भी एक और खुदा रहता तो सारी दुनिया में फसाद मचता। कैसे?
अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों जुदा होते संसार में। कैसे? दो खुदा होते तो क्या होता दुनिया में? एक खुदा बोलता है बारिश नाजिल कर, उन्हें बोलता नहीं नहीं गुनाह बहुत हो गए, बारिश नाजिल करूंगा रुक। अब खुदा आपस में लड़ लेते रहते। अल्लाह ताला बोला दो दो तीन तीन चार चार खुदा नहीं है, तुम्हारा रब कौन है? एक ही है, एक इलाह है, तुम्हारा एक रब है, एक इलाह है, एक अल्लाह है, उसके अलावा तुम्हारा कोई दूसरा इलाह नहीं है, उसी की इबादत करो। कुरान करीम के अंदर एक आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 का एक टुकड़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी। एक बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं मैं आपको, जरा गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मर्द के जिस्म में दो दिल नहीं रखे। जरा साइंटिफिक है, आसान बना के पेश करूंगा फिर भी मैं आपको आपकी जबान में। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मर्द के जिस्म में दो दिल नहीं रखे। किसके जिस्म में? किसके जिस्म में? मर्द के जिस्म में। इसका मतलब यह है कि औरत के जिस्म में दो दिल हो सकते हैं। अरे यही मतलब हुआ ना जी, नहीं समझे? कुरान की आयत का तर्जुमा समझे। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मर्द के जिस्म में दो दिल नहीं रखे। इसका मतलब औरत के जिस्म में दो दिल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? औरत का अपना दिल, अगर औरत हमल से है तो उसके बच्चे का दिल। कितने हो गए? दो दिल। अगर औरत उसके पेट में दो बच्चे हैं, औरत का एक दिल, दो बच्चों के दो दिल, कितने हो गए? तीन हो गए। मर्द के जिस्म में दो दिल क्यों नहीं है? क्योंकि मर्द कभी हमल से अरे बोलो जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा समझे आप लोग। अब इसमें तौहीद है, कैसे तौहीद है वो समझाना है आपको। अगर आप ये आयत समझ गए ना, इस आयत के अंदर तौहीद है। कैसे? आप देखें, अल्लाह ने फरमाया मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी। हमने किसी मर्द के जिस्म में दो दिल नहीं रखे हैं। इसका मतलब औरत के जिस्म में दो दिल हो सकते हैं। अगर औरत प्रेग्नेंट है, हमल से है, उसका अपना दिल, उसके बच्चे का एक दिल। लेकिन ये दोनों एक साथ काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं? हाँ, ये समझने वाली बात है। अलग अलग काम करते हैं, मिक्सअप नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाह रहा है कि अगर मर्द के जिस्म में दो दिल होते तो फैसला लेता कौन है? दिल लेता है। कोई भी मसले में फैसला कौन लेता है? दिल लेता है। यहां एक दिल है, यहां एक दिल है, दो दिल होते, एक दिल बोलता कर, दूसरा दिल बोलता मत कर। अब दोनों दिल आपस में झगड़ते। जब इंसान के जिस्म में दो दिल होने की वजह से पूरे जिस्म का निजाम बिगड़ सकता है, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर दो खुदा होंगे तो क्या दुनिया का निजाम नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। तो यही तौहीद है कि इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खास करके मर्द के जिस्म के अंदर एक दिल रखा है। कुरान की आयत समझ में आ गई? मिसाल समझ में आ गई? तो इसका मतलब यह है कि हम जिस अल्लाह को मानते हैं वो सारी कायनात में कितना है? एक ही है, एक भी नहीं है। यहां जरा फर्क आता फिर। एक ही है, एक भी नहीं है। अगर एक भी कहेंगे तो दूसरा भी है, दूसरा भी कहेंगे तो तीसरा भी है, तीसरा भी कहेंगे तो फिर लंबी लाइन लग जाती है उसके लिए। हम लोग नमाज में पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या मतलब? इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इसका मतलब यह है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं, तेरे सिवा किसी और से मदद तलब नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आदमी यह कहता है इय्याका नअबुदु, हम तेरी भी इबादत कर लेते हैं, इसका मतलब दूसरे भी हैं, जरूरत पड़ी तो तेरी भी इबादत कर लेते हैं। इय्याका नस्तईन, हम तेरी भी
तुझसे भी मदद मांग लेते हैं, दूसरे बहुत सारे हैं, जरूरत पड़ी तो तुझसे भी मदद मांग लेते हैं। ऐसा कहना ही और भी का फर्क जो है इंसान को तौहीद परस्त भी बनाता है और इंसान को शिर्क के दर्जे पर, शिर्क के दरवाजे पर भी लेकर के जाता है। आप घर में दाखिल हुए, आप शादीशुदा हैं, घर में दाखिल हुए, ये मिसाल जल्दी समझ में आती है। देखो, आप शादीशुदा हैं, घर में दाखिल हुए, एक आदमी की औरत एक गैर मर्द के साथ बैठी हुई है, उन्हें घर में दाखिल होते ही सामने वाले से बोल, इनो भी मेरे मर्द, इनो भी मेरे मर्द, यानी तुम भी मेरे मर्द, इनो भी मेरे मर्द। मर्द मानता, टुकड़े टुकड़े कर को भागा जो है उसे तकसीम करता। इसे जल्दी समझ में आ देखो बच्चे को। माशाअल्लाह। तो बताने का मकसद क्या है, कभी औरत ये नहीं बोलती कि ये मेरा भी मर्द है, नहीं, ये मेरा ही मर्द है, ये मेरा ही शौहर है। मेरा भी शौहर है बोलेंगे तो शौहर पूछता और कहते हैं तेरे, क्योंकि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है लेकिन एक औरत 4 मर्द नहीं कर सकती। इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है, वो एक अलग मसला है। समझाने के लिए, तौहीद को समझाने के लिए मैं आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूं। तो मालूम क्या हुआ, इस तरीके से आप जो है तौहीद को समझ सकते हैं। अब आइए कुरान करीम की एक आयत पेश करते हुए अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। सूरह अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरा जीना, व ममाती और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। एक आदमी नमाज में खड़े होकर के कुरान पढ़ने के वक्त में इकरार करता, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ तेरे वास्ते है। इधर नमाज खत्म होती जाकर के उधर गैरुल्लाह के सामने सजदा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसकी सारी की सारी इबादतें उसके मुंह पर मारी जाएंगी, हवा मंसूरा बना दी जाएगी उसकी नेकियां। इसलिए तौहीद पर अपनी जिंदगी गुजारो, शिर्क से बचो। शिर्क एक ऐसा गुनाह है और इतना खतरनाक गुनाह है, इंसान की सारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ कर देता है। और आज हमारे माशरे के अंदर शिर्क बहुत ज्यादा है। तौहीद मुसलमानों को मालूम नहीं है। शिर्क को तौहीद समझ रहे हैं, शिर्क को दीन समझ रहे हैं, शिर्क को नबी का तरीका समझ रहे हैं। तो ऐसी हालत में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम लोगों को शिर्क से बचने के लिए तौहीद की दावत देंगे। जब तौहीद की दावत देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोग एक अल्लाह की इबादत करने आएंगे, गैरुल्लाह की इबादत से अपने आप को बचाएंगे और इस तरीके से ये शिर्क के जो अड्डे हैं खुद ब खुद खाली हो जाएंगे। वहां जाको बोलने की जरूरत नहीं है क्या कर रहे हैं तुम्हें, किधर कर रहे हैं, ये कहीं को सजदा कर रहे हैं, नहीं, तौहीद की दावत है, एक अल्लाह को मानो और मुसलमानों को एक अल्लाह की तरफ बुलाओ, तौहीद की तरफ बुलाओ। कुरान पढ़ने के वास्ते बोलो, खाली कुरान पढ़ना नहीं, समझ को पढ़ने के वास्ते बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा उनके अंदर पैदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करने का जज्बा उनके अंदर पैदा करो। और एक बात याद रखो, दावती काम में कभी भी किसी से ये नहीं बोलना तू मुशरिक है, तू बिदअती है, तू फला है, तू ऐसा नहीं, तू हमारा भाई है। क्या बोलना? तू हमारा भाई है। यह और बात है कि तू थोड़ा सा भटका हुआ है, आ जा सीधे रास्ते के ऊपर। तू जो कर रहा है ये काम बाप दादा करते थे बोल करके कर रहा है, लेकिन अगर तू सही दीन को पहचानेगा तो ये कभी भी नहीं करेगा। तो इसलिए प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, अपने किरदार से आप लोगों को तौहीद की दावत दें और शिर्क से बचाने की कोशिश करें। यही आज के पूरे दर्स का खुलासा है कि एक मुसलमान को तौहीद पर अपनी जिंदगी गुजारना है और शिर्क से अपने आप को बचाना है। मैं आखिर में अल्लाह ताला के शुक्रिया के बाद ये तमाम जिम्मेदारों का
اور جو ہمارے ساتھ قافلہ آیا ہوا ہے نلور سے، اور آپ تمام حضرات کا جو یہاں سے بھی ہیں اور کافی دور سے آپ لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کلمے کی زندگی کے ساتھ ہم کو زندہ رکھ، اور موت آئے تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔